अगर ये एग्जाम आप पास हो जाते हो तो आपको लाइसेंस मिलती है। मार्क्स की एलिजिबिलिटी क्या है, पास या फेल कितने चाहिए, अपनी पीजी में एडमिशन कैसे लेते हैं, एमबीबीएस इंक्लूडिंग फॉरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, microbiology, anatomy, physiology, biochemistry. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Ritesh Biradar, a second year medical student at JJ Medical College, Davangere. So in this video we will discuss about the next exam. नेक्स्ट एग्जाम क्या होती है, उसके रूल्स क्या है, पेपर वाइज डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम का फुल फॉर्म है नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जामिनेशन। इट इज हेल्ड बाय एनएमसी, लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन। अगर ये एग्जाम आप पास हो जाते हो तो आपको लाइसेंस मिलती है। ये एग्जाम जो है ना, नीट पीजी को रिप्लेस करके नेक्स्ट एग्जामिनेशन बनाया गया है। ये किन किन को बच्चों को एप्लीकेबल होता है बोले तो ऑल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स परस्यूइंग द डिग्री ऑफ एमबीबीएस इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस एज अप्रूव्ड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन। ऑल फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट अप्रूव्ड बाय द नेशनल NMC for the purpose of obtaining license to practice medicine as a registered medical practitioner in India. मार्क्स की एलिजिबिलिटी क्या है, पास या फेल कितने चाहिए और नीट पीजी में एडमिशन कैसे लेते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट जो है ना, हमें नेक्स्ट एग्जाम दो स्टेप में हो जाएगी। फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप वन और नेक्स्ट स्टेप 2। फर्स्ट हम नेक्स्ट स्टेप 1 के बारे में बात करेंगे। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेक्स्ट स्टेप 1, ऑब्जेक्टिव ऑफ नेक्स्ट स्टेप 1। द नेक्स्ट स्टेप 1 comprehensive computer based examination based on high quality multiple choice questions, ensuring objectivity and following nationwide delivery and conduction with robust fidelity in secure manner. The MCQ items would address higher domains of knowledge aligned to competencies expected of an Indian medical graduate. Distribution of items and knowledge level of questions. To ensure assessment of higher domains of medical learning, a majority of items shall be test higher level comprehensions. Analytical skills, clinical problem solving that are aligned to competencies. Next step 1 format is intended to discourage rote learning by the medical students. Case vignettes, clinical cases scenarios shall be the overwhelming pattern of examination. MCQ items in all subjects shall be distributed approximately by as follows. However, variations in the distribution may be expected. The level of knowledge related to the acquisition of competencies shall be approximately must to know 60% और nice to know 30% और may know 10%। 60% जो है हमें पता ही होना चाहिए। फिर अभी may know 10% अभी आएगा नहीं आएगा पर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स उसकी बात करेंगे। The next step 1 examination will have 6 subject papers with respective weightage in items and time allocation. Applied aspects of all other subjects of MBBS including forensic medicine, community medicine, pathology, pharmacology, microbiology, anatomy, physiology, biochemistry, इसके जो है क्लिनिकल केसेस रहेंगे, क्लिनिकल अप्लाइड एस्पेक्ट। इन ईच पेपर 10% item will pertain to applied aspects of anatomy, physiology, biochemistry, microbiology, patho, pharma, forensic medicine relevant to the subjects evaluated. In each paper 10% item will pertain to applied aspects of public health, PSM, community medicine relevant to the subjects evaluated. The following table 1 provides the subjects in each paper will respective weightage in items and time allocated with provision of 20% of the items distributed. टोटल 6 पेपर हो जाएंगे। उसमें फर्स्ट पेपर जो है ना अपना मेडिसिन एंड उसके अलाइड सब्जेक्ट्स। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस रहेंगे। हमको टाइम दिया जाएगा 3 घंटा। फिर सर्जरी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स उस 120 क्वेश्चंस एंड 3 आवर दिया जाएगा एग्जाम के लिए। फिर ओबीजी सेम 120 क्वेश्चंस एंड 3 आवर्स। पीडियाट्रिक्स जो है ना वो 60 क्वेश्चन से रहेंगे और उसको 1.5 घंटा दिया जाएगा। फिर अपना आता है ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। ENT और ऑप्थेल्मोलॉजी में आपको मिलेंगे 60 क्वेश्चंस, उसको भी टाइम 1.5 घंटा। 3 जो सब्जेक्ट है हमारे वो 120 क्वेश्चंस रहेंगे, उसका टाइम एग्जाम टाइम 3 घंटा दिया जाएगा। फिर अपना पीडियाट्रिक्स, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी उसमें जो है ना 1.5 घंटा ही मिलेगा, जो 60 क्वेश्चन ही उतने ही है। और प्रपोज टाइम शेड्यूल ऑफ पेपर्स, फर्स्ट मेडिसिन एंड अलाइड सब्जेक्ट हो जाएगा, 3 आवर दिया जाएगा, 3 आवर। उसके बाद 3 आवर होने के बाद 2 घंटे ब्रेक दिए जाएंगे। फिर पीडियाट्रिक्स पेपर चलेगा 1.5 घंटे के लिए। सो सेकेंड दिन छुट्टी मिलेगी, थर्ड दिन फिर से सर्जरी 3 घंटा चलेगा वो भी। फिर 3 घंटा वो होने के बाद एग्जाम ब्रेक मिलेगा 2 घंटे। फिर अपना आता है ENT 1.5 घंटा पेपर है। फिर चौथे दिन छुट्टी मिलेगी।
फिर अपने 5वें दिन ओबीजी चलेगा जो 3 घंटा हो जाएगा और 2 घंटे ब्रेक होने के बाद ऑप्थेल्मोलॉजी का पेपर हो जाएगा। तो ये जो पूरी जानकारी थी वो नेक्स्ट स्टेप 1 एग्जाम के बारे में थी। तो अभी नेक्स्ट स्टेप 2 के बारे में बात करेंगे। The next step 2 shall be comprehensive practical or clinical examination to be conducted after completion of internship that evaluated competencies in clinical diagnosis। अपनी internship जब होती है ना तो उसके बाद next step 2 देना पड़ेगा। And clinical decision making questions, practical and communication skills necessary for practice of modern system of medical graduation of India। Evaluation methods जो है ना, each examination would comprise actual cases, objective structured clinical examination OSCE, फिर simulations if possible। Depending on the ability of satisfactory performance or unsatisfactory performance, there shall be only 2 level of grading component or pass or fail। Distribution of subjects, the following subjects shall be evaluated during next step 2 examination। First, medicine and allied subjects, any medicine and allied subjects, फिर अपना सर्जरी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स ओबीजी, पेडियाट्रिक्स, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, फिर ऑर्थोपेडिक्स एंड फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशंस। ये जो है ना नेक्स्ट स्टेप टू एग्जाम के बारे में रहेगा। टाइम शेड्यूल, द टाइम शेड्यूल एंड मॉड्यूलेट्स ऑफ नेक्स्ट स्टेप 2 शैल बी डिसाइडेड बाय द एनएमसी एंड द रेस्पेक्टिव ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी। आणि एनएमसी डिसाइड करेगी या नहीं तो पर्टिकुलरली स्टेट वाइज यूनिवर्सिटी। आज हमारे बात करें तो आरजीएचएस यूनिवर्सिटी है, किसी अदर स्टेट की अलग हो जाएगी, तो उनके ऊपर भी टाइम डिपेंडेंट रहेगा। इंस्टीट्यूशंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप एंड प्राइस टू द एडमिशन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ दैट ईयर। हमें पीजी में एडमिशन लेना रहता है, उसके पहले नेक्स्ट स्टेप 2 हो जाएगी। स्टेप 1 के रिजल्ट के बेसिस पे हमें पीजी में एडमिशन मिल जाएगा। टाइम शेड्यूल ऑफ नेक्स्ट एग्जामिनेशंस एंड एसोसिएटेड इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। द टाइम शेड्यूल ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ नेक्स्ट एग्जामिनेशंस, इंटर्नशिप एंड एडमिशन टू broad specialty postgraduate courses shall be announced by the commission and other bodies authorized by the commission। अब एनएमसी ने एक नोट रिलीज की है, उसमें जो लिखा है उसमें लिखे हैं नेक्स्ट स्टेप 1 रेगुलर जो है ना, डेट ऑफ एग्जाम एंड कमेंसमेंट 2nd वीक ऑफ दिसंबर लिखे हैं नेक्स्ट स्टेप 1 रेगुलर। डेट ऑफ रिजल्ट 2nd वीक ऑफ जनवरी, यानी 1 महीना छुट्टी मिलेगी। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप सप्लीमेंट्री आएगी, उसकी कोई डेट नहीं है। फिर वो होने के बाद फाइनल एमबीबीएस पार्ट 2 प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। जो नेक्स्ट स्टेप 1 जो है ना, थियरी एग्जाम कैंसिल करके ये रखे हैं, यानी हमें प्रैक्टिकल अभी देना पड़ेगा। तो फाइनल एमबीबीएस प्रैक्टिकल और क्लिनिकल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 1st वीक ऑफ जनवरी में कंडक्ट किए जाएंगे और 4th वीक ऑफ जनवरी में रिजल्ट उसका आएगा। इंटर्नशिप जो है ना 1 फरवरी से 28 फरवरी फॉलोइंग ईयर, यानी इस साल 1 फरवरी से चालू किए तो 365 डेज की इंटर्नशिप चलेगी। इंटर्नशिप होने के बाद नेक्स्ट स्टेप 2 रेगुलर हो जाएगी 2nd वीक ऑफ मार्च। 2nd वीक ऑफ मार्च हो जाएगी, फिर उसका रिजल्ट जो है ना 1st वीक ऑफ अप्रैल। नेक्स्ट स्टेप 2 में बस पास हो गया फेल हो गया, इसका यही मैटर होता है। अगर पास हो जाओगे तो आपको पीजी में एडमिशन के लिए जो नेक्स्ट स्टेप 1 में रिजल्ट आया था उसके बेसिस पे सीट मिल जाएगी। पीजी एडमिशन जो है ना मई के जून महीने में चालू हो जाएंगे और एंड ऑफ जून मंथ खत्म हो जाएगा पूरा। फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स 1 जुलाई से चालू हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक सब्सक्राइब कर दिए। अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे रिगार्डिंग नेक्स्ट एग्जाम तो कमेंट में बताइए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू।